how are you all? So today we will begin with the lesson number 1 of your class 4 EVS, that is living and non-living things. What are living things? The things that have life are called living things, and the things that do not have any life, they are called non-living things. The things who can walk, who can talk, who can eat, who can reproduce, who can die are called living things, are the examples of living things. The things, those who cannot do such activities like walking, moving, running, eating, are the non-living things. So let's begin with the lesson. This is the very interesting chapter. In this picture, you can see many living things that a father, uncle, a mother, a grandmother, children. These are living things. The trees are also called living things because they have life. They have to survive. They need food to live. Now, everything around us is our environment. जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ है उसको क्या कहते हैं? That is our environment. Our environment consists of both living and non-living things. जो हमारा environment है वो किससे consist है? उसमें living things भी है and non-living things भी है. There are many features that make living things different from non-living things. There are many features. यहाँ पे बहुत सारे features हैं जो living things को non-living things से differentiate करते हैं. Like walking, eating. Living things can walk, but non-living things cannot walk. Living things can eat, but non-living things cannot eat. Now, difference between living and non-living thing. Now we will read the difference between living and non-living thing. Living things can breathe, eat, move, feel, grow, reproduce, give out, waste and die. जो living things होता है, as I told you earlier, they can move, they can walk, they can eat, they can sleep, they can reproduce, they die, they walk, they throw out waste. Human beings, animals and plants are living things. Human beings हो गए, plants हो गए, animals हो गए, they are all living things. They need water, they need food to live. Non-living things cannot perform any of the above function. जो non-living things होते हैं वो ऐसी कोई भी above function perform बिल्कुल भी नहीं कर सकते. Can you name some non-living things? Can you name some non-living things like table, chair, fan, light? They all are non-living things. Now, living things breathe. You all know living things breathe. Without oxygen, we cannot live. We are the humans. We cannot live without oxygen. Without oxygen, animals cannot also live. All living things breathe. जो सब जितनी भी living things है सब breathe करते हैं. Even plants, trees also breathe. However, they breathe in different ways. हर कोई different ways में breathe करता है. Like human being and many animals like dogs and cats. Human beings like dogs and cats breathe through their lungs. कहाँ से breathe करते हैं? वो अपने lungs से breathe करते हैं. Some water animals like fish breathe through gills. कुछ water animals हैं जो fish water में ही रहते हैं, like fish, they breathe through their gills. Insects like grasshopper breathe through tiny opening on their skin. जो insects होते हैं grasshoppers होते हैं, कुछ और insects होते हैं, वो कहाँ से breathe करते हैं? From their tiny openings on their body, on their skin. These openings are called spiracles. इन openings को क्या कहते हैं हम? Spiracles. These are called spiracles. Learn this. Plants breathe through tiny pores on their leaves. Plants किससे breathe करते हैं? Tiny pores होते हैं उनके, वो उससे breathe करते हैं. These pores are called stomata. इन pores को क्या कहते हैं हम? Stomata. From the pores from which the plants breathe are called stomata. This is also the important term. Non-living things do not breathe. जो non-living things है, they do not breathe. वो सांस लेती नहीं, उनको नीड ही नहीं है सांस लेने की, because they do not have any organ to breathe. Living things need food. जो living things है उनको क्या चाहिए? Food to get energy to live a long life. All living things need food to live. सब living things को food चाहिए रहने के लिए. Food gives them energy and help them to grow. जो food होता है वो उन्हें energy देता है और किसमें help करता है? Grow करने में. Herbivorous. What are herbivores? Herbivores are the animals, those who eat grass. Like cows, zebras and horses eat plants. ये जो होते हैं, ये animals जो होते हैं, cows, zebras, ये क्या खाते हैं? Plants को खाते हैं. Carnivorous. Carnivorous कौन होते हैं? Those who eat flesh of other animals are like lion, tiger and leopard eat the flesh of other animals. वो क्या खाते हैं? और animals ही flesh खाते हैं. Omnivorous. कौन होते हैं omnivorous? Those who eat the flesh
And also plants are called omnivorous animals. Like chimpanzees, crows and bears eat both plants and animals. वो क्या करते हैं? Chimpanzees, crows, bears क्या करते हैं? Animals भी खाते हैं और plants भी खाते हैं. Human being are omnivorous. Human beings क्या है? Omnivorous है. कुछ human beings क्या खाते हैं? Plants भी खाते हैं. इस मतलब normal vegetarian food भी खाते हैं, कुछ non-vegetarian भी खाते हैं. So that they are omnivorous. They eat vegetables, fruits, eggs and meat. Scavengers. Who are scavengers? Like hyenas and vultures eat the flesh of dead animals. जो scavengers होते हैं वो क्या खाते हैं? Dead animals खाते हैं. Most plants prepare their own food with the help of air, water, chlorophyll and sunlight. जो plants होते हैं अपना food किससे prepare करते हैं? They make their food with the help of chlorophyll, water and air and sunlight. Leaves prepare their food. The process of preparation of food by green plants is called photosynthesis. जो फूड प्रोसेसिंग होती है ग्रीन प्लांट्स के, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जैसे जैसे वो फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड की नीड ही नहीं है. दे डू नॉट नीड फूड. लिविंग थिंग्स मूव. जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करती है? दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑल लिविंग थिंग्स मूव. जो जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो मूव करती हैं. दे नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू गेट फूड. उनको एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है? फॉर फूड, खाने के लिए. एस्केप फ्रॉम एनिमीज सो ऑन. अपने अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. जैसे लॉयन खाते हैं डियर्स को, तो डियर्स भागते हैं ना एक प्लेस दूसरी प्लेस अपने आप को बचाने के लिए. दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो प्लांट्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बिल्कुल भी मूव नहीं करते. देयर रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स शो सम मूवमेंट. जो उनके लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स होते हैं वो थोड़ी बहुत मूवमेंट्स दिखाते हैं. The roots of a plant grow below the ground and shoot grow upward. जो रूट होती है प्लांट की वो ग्राउंड के बिलो ग्रो करती है और कुछ अपवर्ड ग्रो करती है. Can you recall the name of plant? Can you recall? क्या आप रिकॉल कर सकते हो प्लांट्स के नेम? Yes. Whose flowers turns to the face of sun? कौन सा फ्लावर है जो सन की तरफ फेस करता है? It's sunflower. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह मूव बिल्कुल भी नहीं कर सकती. उन्हें हमारे ह्यूमंस की नीड है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए. दे नीड समवन टू मूव देम. उनको किस चीज़ की नीड होती है? किसी की नीड होती है एक जगह से दूसरी जगह टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नेक्स्ट पेज. अ कार कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन. लाइक अ कार, जो एक कार होती है वो अपने आप तो मूव करेगी नहीं. आपके किसी न किसी कुछ ना कुछ ड्राइविंग स्किल्स की नीड होती है उसे मूव करने के लिए. नॉन लिविंग थिंग्स फील. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो फील कर सकते हैं. दे कैन फील द पिंच, दे कैन फील द कोल्ड, दे कैन फील द एयर. ऑल लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट. जो भी लिविंग थिंग्स है वो फील करती है और किस पे रिस्पॉन्ड करती है? अपने एनवायरनमेंट पे रिस्पॉन्ड करती हैं. व्हेन यू हग योर ग्रैंड मदर शी फील्स हैप्पी. जब भी आप अपनी ग्रैंड मदर को हक करते हो शी फील्स वेरी हैप्पी ना. लाइकली एवरी लिविंग थिंग कैन फील लाइक ह्यूमंस बीइंग. एनिमल्स ऑल्सो फील हैप्पी. जो ह्यूमंस बीइंग की तरह एनिमल्स है, जैसे आपका कोई पेट एनिमल है, डॉग हुआ, कैट हुआ, आप उसको हक करोगे दे ऑल्सो फील हैप्पी. सैड, उन्हें सैड भी फील कर सकते जब आप उनके पास नहीं होते. और हंग्री भी, उन्हें भूख भी लगती है. एंड थर्स्टी, उन्हें प्यास भी लगती है. प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट. प्लांट्स जो होते हैं वो उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है वो रिस्पॉन्ड करते हैं. अगर सनलाइट में ज़्यादा देर तक है वो थोड़ा ड्राई भी फील होने लगते हैं. ड्राई वो तो अगर उन्हें पानी नहीं मिल रहा वो सूख जाते हैं. लाइक बिकॉज दे मेक फूड फ्रॉम द वाटर. दे ग्रो टूवर्ड्स सनलाइट. वो किसकी तरफ ग्रो करते हैं? सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं. द मिमोसा और कोच मीन और टच मी नॉट. द मिमोसा और टच मी नॉट plant closes its leaf if you touch it. मिमोसा और टच मी नॉट प्लांट देखा है आपने? अगर आप उसको टच करोगे वो अपने लीव्स को क्लोज कर लेता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो अपने एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड नहीं करते. लिविंग थिंग्स ग्रो. जो भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है दे ग्रो. वो छोटे से बड़ी भी होती हैं, वो मतलब पतले से मोटा भी होते हैं, मतलब वो हर तरीके से ग्रो करती हैं. All living things grow. Their shape, size and other physical features also change with time.
जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो अच्छे से ग्रो करती है और उनकी शेप, फीचर, साइज हर तरीके से चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। ह्यूमन बॉडी ग्रो इनटू एन अडल्ट, पहले बेबी होता है, देन चाइल्ड होता है, उसके बाद एक टीनेजर होता है, देन एन अडल्ट, देन ग्रैंड अडल्ट। वो धीरे धीरे ऐसे बड़ा हो जाता है। ह्यूमन बीइंग, अ चिक ग्रो इनटू अ हैन और अ रोस्टर। जो एक चिक होता है वो पहले हैन बनता है और रोस्टर भी बन जाता है। अ कैटरपिलर ग्रो इनटू अ बटरफ्लाई। जो एक कैटरपिलर होता है, बेबी बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर, वो फिर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अ स्मॉल सीड बिकम्स अ सैपलिंग एंड फाइनली ग्रोज इनटू अ ट्री। जो एक स्मॉल सीड, आपने कोई स्मॉल सीड प्लांट करी, वो पहले सैपलिंग बनेगी, वो धीरे धीरे फिर ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। डज योर पेन और बुक ग्रो? क्या आपका पेन और बुक ग्रो करते हैं? नो, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, दे कैन नॉट ग्रो, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। क्या लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं? अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं? ऑफ कोर्स दे रिप्रोड्यूस। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स resembling their parents are produced is called reproduction। जो लिविंग थिंग्स एक दूसरे के रिजेम्बलेंस में ग्रो करते हैं, बर्थ करते हैं, the process is called reproduction। giving birth to their young ones is called the reproduction। Human beings and many animals like dogs, cats, tiger give birth to babies। ह्यूमन बींग्स की तरह कुछ एनिमल्स होते हैं, डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, हर एनिमल अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। Such animals are called mammals। उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? mammals। Birds, insects, fishes, crocodiles and snakes lay eggs। कुछ होते हैं जो ले एग्स देते हैं, लाइक बर्ड्स हो गई, बर्ड्स एग देती है, हैंड देती है ना एग, इट इज़ अ बर्ड। इंसेक्ट्स भी एग्स देते हैं और फ्लाइज भी एग्स देती है, फिशेज भी, क्रोकोडाइल्स भी, दे ऑल्सो ले एग्स। आफ्टर सम टाइम देयर यंग वंस हैच आउट ऑफ देयर एग्स। जब जो उनके यंग वंस होते हैं वो एग्स में से निकल आते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड हैचलिंग। जो एग्स फटते हैं वो निकल आते हैं, वो हैच कर जाते हैं, और द प्रोसेस इज कॉल्ड हैचलिंग। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स से प्रोड्यूस करते हैं। सीड्स आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट ऑफ प्लांट। जो सीड है वो कहाँ फॉर्म होती है? द सीड इज फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। आप कोई फ्रूट खाते हो, उसके अंदर आपको सीड्स देखने को मिलती है ना। The seeds are found inside the fruit of plant। non-living things cannot reproduce। जो non-living things होती है वो अपने वो reproduce नहीं कर सकती। तो चेयर की कभी आपने दो देखे, उनका बेबी देखा है? नो ना, they cannot reproduce। living things release waste। जो living things होती है वो waste को release करती हैं। जैसे आप पानी पीते हो, आप यूरिन पास करते हो, that is the waste of your body। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स गिव आउट वेस्ट। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो वेस्ट अपनी बॉडी से थ्रो आउट करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिलीज वेस्ट फ्रॉम देयर लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर। जो प्लांट्स होते हैं दे ऑल्सो रिलीज द वेस्ट, वो भी वेस्ट रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, उनमें से वाटर निकलता है ना। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट गिव आउट वेस्ट। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनमें से वेस्ट नहीं निकलता। So next, living things have a fixed lifespan। जो एक living things होती है उनका एक fixed lifespan होता है कि इतने years तक ही वो जिएंगे, मतलब it can fluctuate, but उनको एक ना एक दिन तो they have to die। All living things have fixed lifespan। They are born, they grow and then they die। वो पहले born होते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, फिर वो एक मर जाते हैं। However, living things differ in their lifespan। हर लिविंग थिंग अपने अपने डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। लाइक मॉस्किटो का 42 आवर्स का होता है अप्रॉक्स, से 72 आवर्स, एंड ह्यूमंस का 60 से 100 ईयर्स का होता है अप्रॉक्स, एंड कुछ डॉग्स का 12 ईयर्स अप्रॉक्स होता है। ऐसे सबके डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। नॉन लिविंग थिंग्स मे और मे नॉट हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन। नॉन लिविंग थिंग्स का लाइफ स्पैन होता भी और नहीं भी होता। सिमिलैरिटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कुछ यहाँ पे पहले हम डिफ्रेंशिएट पढ़ा हुआ, सिमिलैरिटीज पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दो डिसिमिलर इन मैनी वेज शेयर सर्टेन सिमिलैरिटीज। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग कुछ वेज में डिसिमिलर भी हैं, जो सिमिलर नहीं होते, और कुछ में सिमिलर भी हैं, लाइक शेप। ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट हैव अ कॉम्पैक्ट शेप्ड, उनकी कॉम्पैक्ट शेप बॉडी होती है। प्लांट्स ऑल्सो हैव अ शेप, प्लांट्स की भी शेप होती है।
मोस्ट नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो हैव अ सर्टेन शेप. उनकी तरह कुछ और नॉन लिविंग थिंग्स की भी सर्टेन शेप्स होती है. फॉर एग्जाम्पल अ तबला हैज़ अ डेफिनेट शेप. तबला की क्या होती है? एक डेफिनेट शेप होती है जो चेंज नहीं होती. ह्यूमन विंग्स की चेंज होती है पर तबला वगैरह इन सबकी नॉन लिविंग थिंग्स की शेप चेंज नहीं होती. डेफिनेट वैसे रहेगा. फैक्ट बाइट नाउ. मोल्स और ओशियन सनफिश आर द हेवीएस्ट. जो मोलास होते हैं और ओशियन सनफिश होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं. बोनी फिश इन द वर्ल्ड दे हैव स्मॉल माउथ दैट लुक लाइक अ बर्ड्स बीक. बोनी फिश जो होती है उनका स्मॉल माउथ होता है. वो कैसे दिखता है? बर्ड्स बीक की तरह, बर्ड की चोंच की तरह दिखता है. मोलास फीड ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ जेलीफिश टू मेंटेन देयर ग्रेट बल्क. मोल्स किस पे फीड करते हैं? जेलीफिश पे फीड करते हैं टू मेंटेन देयर ग्रेट बल्क. वेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेट. वजन क्या होता है? ऑल लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव वेट. सबका लिविंग थिंग्स का भी वेट होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का भी वेट होता है. ट्राई होल्डिंग योर पेट. आप अपने पेट को होल्ड करके देखो, उसमें वेट होगा ना. इट हैज़ वेट. ट्राई लिफ्टिंग अ चेयर. आप चेयर उठाओ, उसमें भी वेट होगा ना. You will find that the chair also has a weight. Now space. All living things need a space to live. All living things and non-living things occupy space. वो सब space को occupy करते हैं. So, I think so that's all for this chapter. Hope you all like the explanation of this chapter. Thank you and have a nice day.